Okay, students, good morning. How are you? I hope that you are all good. And today we talk about chapter 6, class 10, maths NCRT triangle. Okay, in this video we discuss about exercise 6.3 introduction and solutions. And we include question 5 questions of exercise 6.3 and 4 examples in this video. Okay, so let's start. We talk about the similarity criterion first. Similarity criterion first. So in this exercise, we talk about SSS similarity criterion criterion and SAS SAS similarity criterion and AAA AAA. इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? AA right? AA similarity criterion. Okay. We take AA because when two angles of one triangle equal to two angles of other triangle, then third angle also equal, because the sum of the three angles of any triangle is 180 degree. Angle sum property. Angle sum property क्या होती है? अगर ट्राइंगल के थ्री एंगल का सम 180 होता है, तो इस ट्राइंगल के भी थ्री एंगल का सम 180 होगा. अब 170 है, 180 है, इसका भी 170 है, 180 है, तो थर्ड एंगल कितना आएगा? 30 डिग्री. थर्ड एंगल कितना? 30 डिग्री. ये भी इक्वल हो जाएगा. सो इन शॉर्ट वी राइट ए क्राइटेरियन. ठीक है, इन प्लेस ऑफ ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन. It is not two similarity criterion. It is one similarity criterion, because A equal to right as A similarity criterion. ठीक है. Now we discuss about triple S. Triple S, if AB upon PQ equal AC upon PR, AC upon PR equal BC upon QR, BC upon QR, then these two triangles are similar. Then triangle ABC similar triangle PQR. Okay, and we discuss about SAS similarity criterion. If AB upon PQ equals AC upon PR and है ना, and एंगल A इक्वल एंगल P. देखो बच्चों, ध्यान से देखो इस बात को ध्यान से देखो. AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, AC upon PR. Then we take including angle of two sides. है ना, including angle of two sides, AC, AB and AC and PQ and PR, including angle A equal angle P. Not we take angle B, angle Q. We cannot take, है ना, we cannot take angle B equal angle Q. We only take angle A equal angle P, because these two angles are including angles of taking two proportional sides. So angle P equal angle A. Angle A equal angle P. है ना? We write as angle A equal angle P. So by SAS, triangle ABC, triangle ABC, not triangle ABC, and triangle BAC, similar triangle. We write now, what we write now, and then triangle QPR, triangle QPR. Okay, understand? देखो, AB upon PQ, AC upon PR, and including angle A equal angle P. If we write triangle ABC, similar
triangle PQR. PQR. What wrong with us? What wrong? What wrong? देखो angle ABC, 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 including side क्या AB and then AC and PQR, PQ and then QR. है ना? It is wrong procedure. It is wrong procedure. So it is wrong. It is wrong. We write the name of these two triangles BAC QPR. BAC, we include these two sides. So BAC and QPR. QP and R. है ना? And including angle A equal angle P. Including angle A and C. So this is the right way to write the similarity of these two triangles as this. Okay. Now we talk about triple A. Triple A. Triple A. Angle A equal angle P. Angle A equal angle P. Angle B equal angle Q. Angle B equal angle Q. And also angle C equal angle R. But we do not include angle C, angle R. It is done. It is done because we take two angles. So by AA similarity criterion, triangle ABC, similar triangle PQR. Okay, students, so please pause the video and note it down. Now we proceed to examples 4, 5, 6 and 8. Okay, students, so please pause the video and note it down. Now we proceed to example. देखो बच्चों, मैं इसका जो तीनों सिमिलरिटी क्राइटेरियंस है बच्चों, इन तीनों सिमिलरिटी क्राइटेरियंस का जो प्रूफ है वो उसके लिए अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो मैं बना दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको इंक्लूड करता था इसको इंक्लूड कर रहा था तो वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ रही थी और मैं उसे मैनेज नहीं कर पा रहा. ठीक है, तो बच्चों इसका अलग से इंट्रोडक्शन, वीडियो लेंथ भी हो जाती है तो बच्चे जो है थोड़ा सा बोरिंग फील करते हैं, तो इसलिए मैं इसका अलग से बच्चों इसका अलग से एक चैप्टर आपके लिए एक वीडियो में अलग से आपके लिए अपलोड करूंगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो एग्जांपल 4 है इन फिगर 6.29 ये फिगर है. प्रूव दैट PQ पैरेलल RS. PQ पैरेलल RS. देखो मैं बना देता हूँ उसका फिगर. यहाँ पे देखो ये फिगर है इसका PQ एंड RS. गिवन क्या है इसमें? PQ पैरेलल RS है. गिवन क्या है? गिवन PQ पैरेलल RS. If PQ parallel RS, then triangle we have to prove triangle POQ. We have to prove triangle POQ similar triangle SOR. Then we write proof triangle PQ parallel RS. If you take PQ parallel RS, then in two triangles, triangles POQ and PRS, triangle SOR, PQ parallel RS, then angle P equal angle S, angle P equal angle F, angle P equal angle S. Why? Because these two triangles are alternate angles. And we take angle Q equal angle R, angle alternate angle also, angle Q equal angle R, and same by same property. So we write by AA. So we get by AA triangle POQ similar triangle
SOR. Okay, so it is done. It is done. Example 4. समझ में आया बच्चे? एग्जाम्पल 4 देखो, ये मैंने लिए एंगल एस इक्वल एंगल पी बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल, एंड एंगल क्यू एंड एंगल आर ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल. सो बाई ए triangle POQ similar triangle SOR, and so it as it is done. Now we talk about example 5. Example 5. Observe figure 6.30 है ना. फाइंड एंगल P. 6.30 में ये दो फिगर गिवन है बच्चों, ये दो फिगर गिवन है 3.8 A B and C and this R P and Q. P and Q 6 centimeter, 3√3 centimeter, 3√3 centimeter, 6√3 centimeter, 12 centimeter, 7.6 centimeter. Okay, we have to find angle P, है ना. angle P in figure 6.30. Then observe figure 6.30 and then find angle P. तो इसमें हमें कुछ नहीं दिया, ना पैरेलल दिया, ना सिमिलरिटी दी, कुछ भी नहीं दिया हुआ है. तो अब हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी फाइंड करेंगे. हम यहाँ पे देखेंगे प्रोपोर्शनलिटी कैसी है. देखिए AB अपॉन 3.6 का जस्ट डबल 7.6, तो AB अपॉन PQ इन ट्राइंगल ABC in triangle ABC and triangle ABC. तो RQP, ABC RQP and RQP. AB upon RQ. देखो बच्चों, इसको लिखने का तरीका सही होना चाहिए, है ना. देखो हम क्या ले रहे हैं, AB अपॉन RQ, है ना. देखो AB 3.8 है और RQ 7.6 है, ये इसका जस्ट डबल है ना. एंड वी गेट 1/2 इक्वल इन राइट हैंड साइड इक्वल 3.8 अपॉन 7.6, है ना. तो ये इसका जस्ट डबल है इक्वल 1/2. एंड QP CB BC अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन PQ इक्वल BC 6 centimeter, PQ 12 centimeter equal. Also we get 1/2 in right hand side. And now we take AC upon, now we take AC और RP, AC and RP. तो AC upon RP इक्वल AC कितना है, √3 और RP कितना है, RP 6√3. √3 से √3 कैंसिल और 1/2 and it is also 1/2. So we get AB upon PQ, AB upon RQ equal BC upon PQ equal AC upon RP. So by SSS ट्राइंगल. अब देखो इसका नेमिंग कैसे होगा. देखो हमने क्या लिया था, ABC एंड RQP, और जो कि हमारा सही था. तो ट्राइंगल ABC देखो ABC AB एंड BC 3.6 एंड 3.8 एंड 6 AB एंड BC RQP ठीक है. RQP 3.68 का जस्ट डबल एंड BC का जस्ट डबल 12. सो सिमिलर टू ट्राइंगल RQP and it is done. हमसे सिमिलर. नो वी नीड टू फाइंड एंगल P. कितना, वी नीड टू फाइंड एंगल P. तो एंगल P कितना आ जाएगा बच्चों. एंगल P देखो, एंगल P किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो एंगल C इक्वल एंगल P आ रहा है. एंगल C इक्वल एंगल P आ रहा है. ये मैंने यहाँ पे एंगल नहीं लिखे, यहाँ पे 80 डिग्री और यहाँ ये 60 डिग्री. तो एंगल C कितना आ जाएगा, पहले तो हमें वी नीड टू फाइंड एंगल C, है ना. एंगल C देखो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है. यहाँ पे देखो
एंगल सी इक्वल 180 माइनस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी। 180 माइनस 80 और 60 कितना 140, 140। तो वी गेट 40 डिग्री। एंगल सी इक्वल 40 डिग्री, एंगल सी इक्वल 40 डिग्री। सो इट इज और आंसर एंगल सी इक्वल 40 डिग्री। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो क्यों हुआ ये, देखो एंगल ए इक्वल एंगल बी था, क्योंकि ए जो है 3.6 3.8 लाइन को इंक्लूड कर रहा है, ए और एंगल बी। अब 3.8 को जो इंक्लूड करा उसका जस्ट आर और क्यू है, आर और क्यू है। और हमसे क्या मांगा है, एंगल सी अदर देन एंगल आर एंगल क्यू, है ना। एंगल पी क्या, अदर देन एंगल आर एंगल क्यू। So it is angle C correspond to angle P, angle C correspond to angle P, and angle C equal to angle P. Okay, बच्चों. So please pause the video and note it down. Now we talk about example 6. Example 6. Example 6 क्या है, इन फिगर 6.31 है ना, 6.31। देखो गिवन क्या है, ये फिगर तो दिख रहा है ना आपको। देखो ये फिगर ऐसे है, ये फिगर है ए बी ओ और सी और यहाँ पे है बी, ठीक है। देखो बच्चों गिवन क्या है, गिवन है ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए इंटू ओ बी इक्वल ओ सी इंटू ओ डी। देखो बच्चों ये गिवन को इसको सीधा करिए, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए इक्वल ओ डी अपॉन ओ बी। ये अब सीधा हो जाएगा, ओ ए अपॉन ओ सी। ओ ए के देखो इससे इसका करस्पॉन्ड है इससे, है ना, और ओडी का करस्पॉन्ड है ओबी से, ओडी का करस्पॉन्ड ओबी से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एंड एंगल दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे हम जी लिखेंगे एंगल ए ओ डी एंड, ये सॉल्यूशन है बच्चों, सॉल्यूशन बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है, ध्यान से देखो। एंड एंगल ए ओ डी इक्वल एंगल सी ओ बी, इक्वल एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो बाई एस ए एस, देखो दो साइड है, दो इक्वलिटी साइड है भाई, ये साइड इसके अपॉन में है ओ ए अपॉन ओ सी, एंड ओडी अपॉन ओबी, ओडी अपॉन ओबी, and angle AOD, this angle equal to this angle. So we can say we get triangle AOD, triangle we have to prove so that angle A equal angle C and angle B। देखो यहाँ पे ये शो करवाया है एंगल A इक्वल एंगल C। देखो मैं टू प्रूव कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ टू प्रूव में ये था एंगल ए इक्वल एंगल सी, एंगल बी इक्वल एंगल डी। देखो अब हमें यहाँ पे क्या मिला, एंगल एओडी, देखो एंगल एओडी सिमिलर ट्राइंगल एओडी सीओबी, एओ अपॉन सीओ, ओबी एओ ओडी अपॉन ओबी, ठीक है। तो ये सही आ गया, ओडी अपॉन ओबी। तो ये दोनों सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए तो बच्चों ध्यान से देखो एंगल ए कितना होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए इक्वल एंगल सी, एंगल ए इक्वल एंगल सी बाई, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, बाई एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल ए इक्वल एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल एंगल डी, एंड इट इज डन। सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आ रहा है ना, ठीक है।
चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों एग्जाम्पल 7 पे। एग्जाम्पल 7 मार्कर चेंज कर लूं। हाँ तो बच्चों एग्जाम्पल 7 क्या है? एग्जाम्पल 7 अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉक। तो ये फिगर दिख रहा है? हाँ तो मैं बना दे रहा हूँ फिगर। तो ये फिगर है, ये रफ फिगर बना रहा हूँ। ए बी बी सी एल ई। A girl of height 90 centimeters walk away from the base of lamp post. It is lamp post. ठीक है? Let AB denotes lamp post. Lamp post. And CD a girl. A girl. ठीक है? Find the अच्छा lamp post at a speed of 1.2 meters per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, that is 3.6 meter above the ground. 3.6 meter above the ground. Find the length of her shadow. अच्छा गर्ल्स हाइट ऑफ गर्ल कितनी है 90 सेंटीमीटर एंड वी टेक इज 0.9 मीटर। ठीक है? तो 90 सेंटीमीटर 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 0.9 मीटर आ जाएगा। ठीक है? अब if the lamp is 3.6 above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. देखो after 4 seconds टाइम कितना दिया है? टाइम हमने दिया है 4 सेकेंड। 4 सेकेंड। देखो बच्चों एक बात अब हम करते हैं। देखो ये बीई है, बीई है ना, और ये शेडो है, ये लड़की की शेडो है। ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड में चलिए, बीडी 4 सेकंड में चलिए, तो बीडी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? बीडी डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों, देखो डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? स्पीड कितनी है? 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? तो डिस्टेंस इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम। जिसमें पड़ा हुआ है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है बच्चों? कितनी? 1.2 मीटर पर सेकेंड इंटू में टाइम कितना है? 4 सेकेंड। तो ये आ गया 4.8 मीटर। ठीक है? ये आ गई आपकी बीडी। ठीक है? बीडी हमने फाइंड कर ली। अब देखो भाई सिमिलरिटी, बिकॉज इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई, बोथ आर राइट ट्रायंगल्स बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर। है ना? हाइट कैसी होती है? परपेंडिकुलर। मैं खड़ा हूँ परपेंडिकुलर दिखा रहा हूँ, या पोल खड़ा है या लैंप पोस्ट खड़ा है, तो वो कैसा? परपेंडिकुलर ही होता है। तो ये कंसीडर ट्रायंगल एबीसी एंड सी डी ई, है ना, बोथ आर राइट ट्रायंगल्स। तो ओके, तो बाई देखो मेरी बात सुनो, बोथ आर राइट ट्रायंगल एंड बोथ आर सिमिलर बिकॉज एंगल बी इक्वल एंगल डी ईच 90 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, एंड एंगल ई कॉमन है, एंगल ई कॉमन है बच्चों। तो एंगल ई इक्वल एंगल ई कॉमन एंगल। ओके, सो वी कैन से ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी डी ई। ओके बच्चों, अब जब ये सिमिलर हो गया बच्चों, जब ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल, तो देखो ध्यान से देखो बच्चों, वी गेट ए बी अपॉन सी डी, ए बी, तो ए बी अपॉन सी डी इक्वल, ए बी अपॉन सी डी इक्वल फुल लेंथ ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, यानी बीई अपॉन बीई, बीई अपॉन में बीई। ठीक है? अब वैल्यू को लगाइए, ए बी कितना है? ए बी देखो ए बी कितना था? ए बी डिनोट लैंप पोस्ट 3.6, तो वैल्यू रखो 3.6 अपॉन 0.9 इक्वल, लेट मी टेक डी एज एफ, लेट डी इक्वल एफ मीटर। ओके, तो बीई कितना होगा? बीई होगा बीडी प्लस डीई, बीडी प्लस डीई। अब बीडी कितना है? बीडी है आपका 4.8, तो 4.8 प्लस डी कितना? एफ अपॉन में डीई, डीई कितना है? ऑल्सो एक्स, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सी
0.9 डिवाइड 3.6 बाई 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स कट गया, ठीक है। तो 4x इक्वल कितना आ गया, तो यहाँ पे देखो 4x इक्वल 4.8 प्लस x, है ना, और इसको राइट हैंड साइड पे लाओ तो 4x माइनस x इक्वल 4.8, तो 3x इक्वल 4.8 एंड x इक्वल, देखो 3 से 1.6 टाइम कट गया, 1.6 मीटर। सो क्या है, find the distance, find the length of her shadow, so length of her shadow, length of shadow equals 1.6 meter after 4 seconds. So this is our answer. So please pause the video and note it down. ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए, हाँ बच्चों, मजा आना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं, मैंने किसमें एग्जाम्पल 7 करा दिया, एग्जाम्पल 8 में बात करते हैं जल्दी से बच्चों। लेंथ जो वीडियो की बढ़ जाती है तो मैं इसको मैनेज नहीं कर पाता, तो जल्दी से आप जल्दी जल्दी नोट कर लिया करिए, है ना। थोड़ा स्पीड में पढ़ा सकता हूँ, बहुत स्पीड में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन चाहे ये क्या हो जाएगा, बच्चों के समझ में नहीं आएगा। और फिर बच्चे कमेंट में क्या कहते हैं, बच्चे अभी इधर भी तो मैथ पढ़ाते ना, इधर बच्चे आते हैं। चलिए तो अब हमें बात करनी है एग्जाम्पल 8 पे, और इसका फिगर नहीं बनाया मैंने, तो फिगर मैं देख लेता हूँ बुक में। एग्जाम्पल 8, देखो एग्जाम्पल 8 है इन फिगर 6.33 CM एंड RM। देखो अब बनाते हैं, देखो सही सब, देखो इसे कुछ सही से देखो, मैं फिगर यहाँ पे बनाता हूँ एग्जाम्पल 8 मिला लो, और ये बन गया AMB और यहाँ पे C, और दूसरा फिगर है ये, तो ये है NQC एंड R। देखो हमें गिवन क्या कर रहे हैं, द मीडियन ऑफ ABC एंड PQR, CM एंड RM गिवन है हमें, गिवन CM एंड RM मीडियन, ठीक है। अच्छा, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ठीक है। अच्छा, टू प्रूव में 3 बातें हैं, है ना, टू प्रूव में 3 बातें हैं इसमें, तो टू प्रूव में यहाँ कहाँ देखें, टू प्रूव में 3 बातें हैं, टू प्रूव में पहली बात ट्रायंगल AMC और चाहिए पॉइंट इसका AMC सिमिलर ट्रायंगल PNR। दूसरा पार्ट इसका CM अपॉन RM इक्वल AB अपॉन PQ, और थर्ड पार्ट है इसका ट्रायंगल CMB सिमिलर ट्रायंगल RNQ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ तो मैंने ये लिख दिया, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बुक में होगा बच्चों, आप देख ही रहे हो। देखो अब हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन यानी प्रूफ। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो CM और RM क्या है आपका मीडियन से, और मीडियन क्या करती है, बेस को डिवाइड करती है, यानी हमें क्या मिला CM इक्वल DM, और यहाँ पे क्या मिला NC इक्वल NQ, ठीक है। अब हम लेते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC गिवन है ना, ट्रायंगल PQR, तो वी कैन राइट AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AC अपॉन PR, एंड भाई ये दोनों सिमिलर हैं। अब ये दोनों सिमिलर हैं तो बच्चों हमें क्या फायदा हुआ, जो हमें फायदा हुआ हम वो लिखेंगे, एंगल A इक्वल एंगल P, और एंगल B इक्वल एंगल Q, और एंगल C इक्वल एंगल R। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट ट्रायंगल AMC एंड PNR। नाउ इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल PNR, AMC और PNR,
ए एम सी में ए सी आ रहा है ना, और पी आर आ रहा है, ठीक है। बट ए एम सी यहाँ पे देखो, ए एम सी कौन सा है, ए एम सी ये है ए एम सी, और पी एन आर कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में देखो ए सी अपॉन पी आर, देखो ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इक्वल इक्वल ए बी अपॉन पी क्यू। देखो ए बी अपॉन पी क्यू हमें गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू है, तो इन दोनों को हमने उठा लिया, ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इफ वी डिवाइड ए बी बाई 1/2, ए बी डिवाइड ए बी बाई 1/2 and PQ by 1/2 also, PQ by 1/2 also, then we get AC upon PR equal AB का हाफ कितना होगा, what is the value of half of AB, AM, so we get AM here, and half of PQ, half of PQ, we get NP equal NQ, NP equal NQ, but we take NC है ना, we take NP एंड बच्चों यहाँ पे देखो एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंड एंगल ए इक्वल एंगल पी, सो वी कैन से ट्रायंगल ए एंड सी सिमिलर ट्रायंगल टी एंड आर, ओके, सिमिलर ट्रायंगल। तो we proved part 1. Now we talk about CM upon RN, CM पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट करिए, तो पार्ट 2 क्या है, CM upon RN, CM upon RN, देखो CM upon RN is the part of these two similar triangles, CM upon RN. Now AB upon PQ, AB upon PQ, तो AB देखो CM upon RN AB upon PQ के इक्वल आ रहा है, यानी अब हमें क्या मिला, CM upon RN इक्वल AC upon PR है ना, by the similarity of this triangle, these two triangles, we get CM upon RN equal AC upon PR, because CM upon RN and AC and PR are the part of AMC and PNR है ना, are the part of AMC and PNR. CM upon RN, AC and PR are the part of these two triangles, so we get CM upon RN equal AC and PR है ना। अब AC and PR by one AC upon PR equal AB upon PQ, AB upon PQ. So from one we get, so CM upon RN इक्वल AB अपॉन PQ, ओके बच्चों, ये पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 यहाँ पे, पार्ट 3 यहाँ पे 3 के लिए बात करते हैं हम, यहाँ पे थोड़े से देखो CMB RNQ, CMB ये है और RNQ ये ट्रायंगल है, CMB एंड RNQ, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट, देखो फ्रॉम वन BC and QR, BC upon QR equal BC upon QR equal AB upon PQ, AB upon PQ, ठीक है। अब इसमें जो काम यहाँ किया था, हमने हाफ किया था है ना, so taking half of these two sides, तो BC upon QR equals half of AB upon half of PQ, we get BC upon QR equal half of AB BM, and by half of AB means AM equal PM and half of QP equal QM and PM. So we take the required triangle है ना, we can take required triangles क्या BMC and QNR. So we take the side of BMC and QNR है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, BC upon QR half of AB BM upon QN and
एंड एंगल क्यू इक्वल एंगल बी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, है ना, एंड एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। सो बाई एस एस, सो बाई एस ए एस ट्राइंगल सी एम बी सिमिलर ट्राइंगल आर एन क्यू। ठीक है बच्चों, तो इट इज डन। एग्जाम्पल नंबर 8। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों, जल्दी से नोट करो बच्चों, लेफ्ट बहुत बड़ी हो रही है वीडियो की। अब हम बात करते हैं बच्चों किससे, हम बात करते हैं क्वेश्चन 1 से। तो मैं इसे हटा रहा हूँ जल्दी से, जितने क्वेश्चन होंगे वो मैं कोशिश करूंगा कराने की इसमें। ठीक है बच्चों, बस 1 घंटे से पहले करें, 1 घंटे से पहले मैं जितने क्वेश्चन हो जाएंगे कराने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैंने टारगेट बनाया था 5 क्वेश्चन करने का, लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं जो है इसे नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट एक्सरसाइज, प्रोसीड टू एक्सरसाइज क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 आ रहा है ना वीडियो में? ठीक है, तो इसे जल्दी से करते हैं और बीच में रखते हैं, इसे क्या रखते हैं बीच में, और यहाँ बात करेंगे साइड में से। देखो बच्चों, देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट में देखो, क्वेश्चन फर्स्ट है, पहले क्या है, स्टेट वेदर द पेयर ऑफ एंगल्स आर सिमिलर। देखो ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, क्या है, वेदर स्टेट वेदर पेयर ऑफ ट्रायंगल आर सिमिलर। पहले हमें बताना है क्या ये पेयर सिमिलर ट्रायंगल्स के हैं, सिमिलर ट्रायंगल है ये। अच्छा, दूसरी बात, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, ठीक है, तो इन ट्रायंगल इन फर्स्ट इन फर्स्ट देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं इन फर्स्ट इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। तो कोशिश करेंगे यहाँ पे नेमिंग सही करने की। तो एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल 60 डिग्री। ठीक है, एंगल सी इक्वल एंगल क्यू इक्वल एंगल क्यू इक्वल 80 डिग्री एंड ऑल्सो एंगल सी इक्वल एंगल आर, एंगल सी इक्वल एंगल आर इक्वल 40 डिग्री। सो वी कैन से ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ओके ओके, तो सिंबॉलिक फॉर्म में भी हो गया और बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। और इसके ज्यादा द पेयर ऑफ, यहाँ पे देख लो, यस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाई सिमिलरिटी क्राइटेरियन भी लिखनी है, यूज बाई सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या हुआ, बाई ए। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट यही है, यही पे। तो सेकंड पार्ट में देखें, पार्ट सेकंड में क्या है, देखो यहाँ पे साइड है, यहाँ पे एंगल इंक्लूड नहीं है, साइड इंक्लूड है। तो साइड में हम यहाँ देखेंगे, देखो 2 का डबल क्यू आर है, ए बी का डबल क्यू आर है, तो हम ए बी के अपॉन में लेंगे क्यू आर। तो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीसी यानी 2R2.5, तो QRT ट्राइंगल QRT। देखो मैंने कैसे लिखा है, तो AB QR 4 RP BC एंड RP यानी 5, 2.5 और 5, तो जस्ट डबल हो रहा है ना। तो अब हम ले लेंगे AB अपॉन PQ AB अपॉन PQ कितना है, देखो 2/4। अच्छा, दूसरा BC अपॉन RP, BC अपॉन RP कितना, 2.5 और RP 5, 2.5 RP 5। ठीक है, तो इक्वल 1/2 लिख दिया, 1/2 इक्वल 1/2। ठीक है, अच्छा दूसरा है AC और PQ, AC 3 और PQ 6, तो AC अपॉन PQ, AC और
QP equal 3/6 equal 1/. So we get AB, we get AC upon PQ, AC of PQ, AC3 of PQ, AB upon QR, RQ वही मतलब RQ QR. So we get AB upon RQ, AC upon RQ equal BC upon RP equal AC upon QP equal 1/2. So by SSS triangle ABC QRP, ABC similar triangle QRP. So please pause the video and note it down. Now we talk about part 3 of question 1. Part 3 ये है part 3. देखो यहाँ पे ध्यान से देखो. LM 2.7 है और EF 5 है ना. तो अब यहाँ पे देखो LP और कोई एंगल इंक्लूड नहीं है, कोई एंगल इसमें इंक्लूड नहीं है. अब तो कोई एंगल इंक्लूड नहीं है तो दो साइड सिमिलर नहीं होगा. तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं है ना. देखो मेरी बात सुनो. LP अपॉन 3 का जस्ट डबल DF है ना. इन गिवन ट्रायंगल्स LP अपॉन BF इक्वल 3/6 इक्वल 1/2. अच्छा दूसरी साइड देखें. MP अपॉन DE equal 2/4 equal 1/2. But we have no third side है ना. No equal third side because LM upon EF LM upon EF कितना हो जाएगा. LM upon 2.7 upon EF 5. तो पॉइंट कैंसिल. यहाँ पे ये होगा 27/50. ठीक है. तो AB. So we have no third side proportional. No third side. No. Yeah, not similar. है ना. क्योंकि LM upon EF not equal to 1/2. LM upon EF not equal to 1/2. So not similar. So ये not similar है third figure. So please pause the video and note it down. We proceed to part 4. Now we proceed to part 4. ठीक है. पार्ट 4 क्या है. देखो पार्ट 4 है. पार्ट 4 ये है. पार्ट 4 ठीक है. तो पार्ट 4 पे बात करेंगे हम. पार्ट 4 देखो ध्यान से. MN just double of MN just half of PQ. So MN upon PQ equal MN कैपिटल में लिखेंगे. MN upon PQ कितना 2.5/5. ठीक है. और ML ये चलो ऐसे रहने दो. दूसरा क्या है ML अपॉन PQ. ML अपॉन QR. ML कितना है. ML 2.5. MN ML ठीक है. अब ML कितना है. ML 5 है तो 5 अपॉन QR कितना है. QR 10 है. तो देखो 1/2. ये 1/2. अब ये 1/2. ये ऑल्सो 1/2. और एंगल इंक्लूडिंग एंगल देखो इंक्लूडिंग एंगल यानी ये दो साइड है ना. ये वाली साइड MM किसके इक्वल है. इसके प्रोपोर्शनल में. और ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल में. तो दोनों साइड क्या है ये प्रोपोर्शनल में है. और इंक्लूडिंग एंगल भी एंगल 70 डिग्री मिल रहा है. एंड तो यहाँ पे देखो MN अपॉन PQ इक्वल ML अपॉन QR. एंड एंगल M इक्वल एंगल Q. एंगल M इक्वल एंगल Q इक्वल 70 डिग्री. तो बाई SAS
ट्राइंगल 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 NML NML सिमिलर ट्राइंगल। देखो NML यानी 2.5 से 5 तक, तो 2.5 PQR 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 और सिमिलर ट्राइंगल हो गए, ऐसे ऐसे हो गए, सिमिलरिटी बता दी हमने और उससे फोन करके बता दिया एंड इट इज डन। नाउ वी प्रोसीड टू पार्ट 5। पार्ट 5 यहाँ पे देखो, पार्ट 5 एंड पार्ट 6, पार्ट 6 है, ठीक है। पार्ट 5 में क्या है, इसमें देखो 2.5 का जब ए बी और डी एफ है, तो ए बी अपॉन डी एफ ए बी कितना है 2.5 और डी एफ कितना है 5, वी गेट 1.2। अब यहाँ पे देखो बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ इक्वल 3/6 इक्वल 1.2। बट ध्यान दो बच्चों, एंगल ए इज नॉट इंक्लूडेड एंगल ऑफ दीज टू साइड। बच्चों दीज टू साइड देखो, ये दोनों साइड हैं, ये दोनों साइड है, एंड एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल एफ, तो ये इंक्लूडिंग एंगल नहीं हो रहा ना भाई। बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, ये दो साइड गिवन है, ठीक है, ये दो साइड गिवन है, यहाँ पे ये दो साइड गिवन है, तो एंगल बी देना चाहिए ना, एंगल बी नहीं है हमारे पास, है ना। एंड वी हैव नो एनी प्रोसीजर टू फाइंड द एंगल बी, है ना, बिकॉज ओनली वन एंगल इज गिवन। सो these two triangles are not similar, ठीक है। इंक्लूडिंग एंगल होना चाहिए, इंक्लूडिंग एंगल, जो साइड अगर हमने इक्वल किया तो उसका इंक्लूडिंग एंगल नहीं हो रहा है। 52 मिनट देखो बच्चों, लास्ट बात कर रहे हैं बस, अब क्वेश्चन हम करेंगे बाद में। ये 52 मिनट की वीडियो हो चुकी है, क्वेश्चन 1 नहीं हो पाएगा। चलो अब हम बात करते हैं पार्ट 6 पे। पार्ट 6 में क्या है, इन ट्राइंगल एंगल डी इन गिवन ट्राइंगल्स, एंगल डी इक्वल एंगल डी 70 है, एंगल डी 70 है। मैं फिगर देखता हूँ इसका, हाँ 70 है। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, एंगल पी फाइंड करेंगे। एंगल पी इक्वल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 110 माइनस 180, तो वी गेट एंगल पी इक्वल 70। तो एंगल डी इक्वल एंगल पी, डी इक्वल एंगल पी इक्वल 70 डिग्री, और एंगल ई इक्वल एंगल क्यू, एंगल क्यू इक्वल 50 डिग्री। सो वी 70 और एंगल एफ फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सो बाई ए अगर दो एंगल मिल जाते हैं बाई ए ट्राइंगल, देखो डी और पी से शुरू करना है, डी ई एफ ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर ट्राइंगल। हमने क्या बात की, देखो पी से स्टार्ट करना है और पी क्यू आर, और ये दोनों सिमिलर हो गए, ठीक है बच्चों। पी क्यू आर यानी एंगल ई इक्वल एंगल क्यू, तो एंगल ई इक्वल एंगल क्यू, एंगल एफ इक्वल एंगल आर, ठीक है, बाई ए। सो यहाँ पे बच्चों ये मैंने वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। अब मैं जो बाकी क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि टाइम जो है 54 मिनट की हो गई है, और मैं नहीं समझता कि क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।